In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, today's back to basics lecture number 4B is there. And we're going to have the practice and exercise of this lecture. Yesterday, we came to know about the use of there for location and existence. We also came to know about the dummy subjects of it and there and some more practice sentences. Now, today, we're going to have an exercise and practice of some spoken sentences, frequently spoken sentences, number 1. फिर हम देर का इस्तेमाल करेंगे with modal verbs. और फिर तीसरा जो है there versus there homophones की बात करेंगे. So let's get started. The first part, before starting the first part, I would like to ask you, how are you doing today? Fine. Thank you very much indeed. Very good for responding me appropriately. It's Friday today. We have a lesser number of students in the class. But anyway, we'll have our lecture. We'll record it. We'll send it to you guys and girls. And all the online viewers can have an access to this lecture as well. Because it's important. It's the following lecture of B4A. It's 4B. Practice and exercise. So let's get started. The first part of the lecture is, आइए कुछ जुमले जो frequently spoken हैं there के usage के हवाले से उनको करते हैं discuss. I have been there before. there का इस्तेमाल यहाँ I have been there. Location की बात हो रही है. Before I have been असल में been और gone में फर्क क्या होता है? Gone अगर आप कहीं कोई गया है और वापस नहीं आया, he has gone to America, वो अमेरिका गया हुआ है, वापस अभी नहीं आया है. अगर आप कहें I have been to America, it means जाकर वापस आ गया हूं. So been gone की सेंस में भी है, लेकिन gone गया है, वापस नहीं आया, been जाकर के वापस आ गया है. I have been there before, मैं वहां पहले भी होकर आया हूं. I have been there before. And what's going on there? वहां क्या हो रहा है? वहां क्या चल रहा है? What's going on there? What's going on there? Location की बात हो रही है. वहां क्या चल रहा है? How can I get there? Get reach की सेंस में है. How can I? मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं? How can I get there? और she's neither here nor there. neither nor का इस्तेमाल neither nor भी कह सकती हैं. वो ना यहाँ है और ना वहाँ है. ना और ना ही के लिए आप neither nor का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यहाँ हम she's neither here nor there, यहाँ बात हो रही है there. लोकेशन की बात हो रही है. ना वो यहाँ है ना वो वहाँ है. How many months are there in a year? कितने महीने हैं एक साल में? How many months are there? Presence या existence की बात हो रही है. और there's no hurry, ये भी presence की बात कर रहा है. कोई जल्दी नहीं है. There's no hurry. There's no evidence. कोई हमारे पास शहादत नहीं है और कोई गवाही नहीं है. और there's no doubt, कोई शक नहीं है. और there was a surprise for you, आपके लिए एक सरप्राइज था. और will you take me there, क्या आप मुझे वहां ले जा सकती हैं? मुतफर्रिक इस्तेमाल थे और इनको आप याद कर सकते हैं, इनसे बेनिफिट कर सकते हैं इन स्पोकन इंग्लिश. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज देयर का इस्तेमाल मॉडल वर्ब्स में है. फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी का इस्तेमाल है. देयर हैज बीन का इस्तेमाल है. देयर शुड बी नंबर 3. There may be number 4, there must be number 5, and there would be number 6. कुछ मॉडल सेंटेंसेस बनाए हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी नो डाउट अबाउट इट, नहीं हो सकता कोई भी शक इसके बारे में. देयर कैन बी हो सकता है, किस सेंस इस पे बनती है. आइए कुछ सेंटेंसेस जो है वो देयर कैन बी के हम अपने स्टूडेंट्स से भी पूछते हैं. सो देयर कैन बी का सेंटेंस बनेगा प्लीज. There can be a danger. There can be a danger. खतरा हो सकता है. ओवर देयर कर देंगे तो देयर कैन, पहला देयर इस्तेमाल हुआ प्रेजेंस के लिए और दूसरा देयर जगह के लिए इस्तेमाल. देयर कैन बी अ डेंजर ओवर देयर, वहां खतरा हो सकता है. शाबाश. There can be problem in smoke. There can be problem in smoke. ये स्मोक जो लाहौर
जो हमारी शामत अमाल है नंबर 1 पे बार बार आ जाता है. सो स्मोक डेंजरस है. देयर कैन बी प्रॉब्लम इन स्मोक और देयर कैन बी अ डेंजर इन स्मोक. स्मोक में खतरा हो सकता है या मसला हो सकता है. जी. There can be challenges in life. देयर कैन बी चैलेंजेस इन लाइफ. जिंदगी में चैलेंजेस हो सकते हैं. जी. नेक्स्ट जी. There can be a lot of unexpected benefit to putting in the extra. या there can be a lot of unexpected benefits. बहुत सारे जो है वो गैर मतवक्को फायदे हो सकते हैं. राइट. सो there can be का इस्तेमाल है. हो सकता है एक चंक ऑफ लैंग्वेज है. there can be a problem over there. वहाँ मसला हो सकता है. there can be a solution to this problem. इस मसले का ये हल हो सकता है. there can be an invitation, by the hosts की जानिब से एक इन्विटेशन हो सकता है. there can be हो सकता है. राइट. ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस बनाने के लिए. हमारे पास एक और एग्जाम्पल है. देयर हैज बिन, ये हो चुका है. देयर हैज बिन अ चेंज ऑफ प्लान्स की तब्दीली हो चुकी है. ये दूसरा चंक ऑफ लैंग्वेज है. देयर का इस्तेमाल मॉडल वर्ब कैन के साथ है. देयर कैन बी अ चेंज ऑफ प्लान्स. देयर हैज बिन अ चेंज ऑफ प्लान्स की तब्दीली हो चुकी है. देयर हैज बिन. जी. कोई और में मॉडल सेंटेंस प्लीज. There has been a misunderstanding. There has been a misunderstanding. एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है. There has been critical error on this website. There has been a critical error on this website. इस वेबसाइट में एक critical error हो चुका है. There has been rise in crime. There has been rise in crime. Oh my God. क्राइम में, जराइम में इजाफा हो चुका है. जी. There has been something to hide. There has been something To hide. there has been something, कुछ हो चुका है, to hide, जिसको छुपाया जा रहा है. Right. There has been something to hide. All right. So ये तो sentences रहे. There can be और there has been के. आइए कुछ sentences there should be के देखती हैं. There should be enough food for everyone. सबके लिए, हर एक के लिए काफी खाना होना चाहिए. There should be होना चाहिए. ये सेंस बनती है इस चंक की. There should be enough food for everyone. हर एक के लिए काफी खाना होना चाहिए. There should be 4 more candles on the cake. There should be 4 more candles on the cake. 4 साल उसने 50 कैंडल्स लगाई होंगी. 54 जो है वो 4 उसने मिस कर दी हैं. 55 बरस के बाद भी पतली सी है कमर और चंग और तंग उसका कोई जामा नहीं हुआ. हैरत है, आशिकों के कलेजे चबा के भी उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं हुआ. ओ माय गॉड. ऑलराइट. जस्ट प्लीज. There should be more public hospitals. There should be more public hospitals. पब्लिक हॉस्पिटल्स और होने चाहिए. राइट. There should be a system for waste disposal and recycling. Oh my God. There should be a system for waste disposal and recycling. कितना जबरदस्त सेंटेंस बोला है इन्होंने कि सिस्टम होना चाहिए वेस्ट डिस्पोजल का और ठिकाने लगाने का वेस्ट को और रिसाइकलिंग का सिस्टम होना चाहिए. सो एक्सेलेंट सेंटेंस इज अबाउट देयर शुड बी होना चाहिए. और देयर मे बी इम्कान है कि हो. देयर मे बी इम्कान है कि हो. There may be some rain later. इम्कान है कि बाद में कुछ बारिश हो. There may be. Hello. There may be something wrong with the car. There may be something wrong with the car. आपका तो ड्राइवर ठीक नहीं पाई. गड्डी भी तो खराब हो सकती है. There can be some wrong with the car. इम्कान है कि गाड़ी के साथ कोई मसला हो. हमारे पास टेक्नीशियन और मैकेनिकल इंजीनियर बैठे हुए हैं टोटा के, तो उनसे पूछेंगे कि गाड़ी खराब थी कि ड्राइवर का मसला था. जी प्लीज. Hello. There may be some doubt in plan. There may be some doubt in plan. There may be some doubt in plan. Plan में इम्कान है कि कुछ है वो मसला मसाइल हो, डाउट हो, शक हो. There may be excitement and anticipation for upcoming events. There may be हो सकता है कि हो excitement
जज्बा और एंटिसिपेशन फॉर द अपकमिंग इवेंट, आने वाले वो मौके का, इवेंट का मुमकिन है कोई एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन भी हो. Excellent sentences, शाबाश, very good. We're going to have some more sentences. Maybe के बाद must be, there must be a solution of this problem. इस मसले का हल होना चाहिए. There must be, जरूर होना चाहिए. Alright, there must be. There must be visual aids in a classroom for better teaching. There must be AV aids, audiovisual aids, for the language learners in the class. Excellent, shabash. There must be good scholarship for students. There must be good scholarship for the students from the universities. University जाने से अच्छा scholarship students के लिए होना चाहिए. There must be good strict rules for proper management in a company. There must be strict rules for proper management. मुनासिब मैनेजमेंट के लिए strict rules होने चाहिए. There must be के wonderful sentences थे हमारे पास. आइए कुछ देखते हैं. Sentence would be होगा. There would be a party at the weekend. Weekend पे एक party होगी. There would be a surprise for everyone. हर एक के लिए surprise होगा. There would be satisfaction guarantee for the buyers. Buyers के लिए satisfaction guarantee होगी. There would be a meeting at 3 p.m. There would be a meeting at 3 p.m. 3 बजे मीटिंग होगी. और उस मीटिंग का एजेंडा क्या है सर? I'm not sure about the agenda क्या है जी. At the party there would be music and dancing. Music and dancing. There would be a concert. Alright, party के बाद फिर concert भी होगा. Plan अगला चल पड़ा है जी. पहले party फिर अगला जो है वो ये भी सब कुछ होगा जी. खाना पीना. There would be lots of delicious food to enjoy. There would be lots of food, delicious foods to enjoy. You have watered my mouth because I haven't done the breakfast yet, unfortunately. All right, yes. There would be Caesar in the car. There would be Caesar in the car. गाड़ी में ज़रूर एक कैंची होगी. किसी ने किसी से बुजुर्ग से या दीन के एक बड़े आदमी से उसके पास गए. उन्होंने कहा आप मुझे कुछ अता करें, कुछ तोहफा दें. तो नहीं, ऐसे नहीं है. वो था कि किसी ने किसी आदमी को एक कैंची तोहफे में दी. तो उन्होंने कहा बेटा अगर मुझे सुई और धागा देते तो ज़्यादा खुशी होती मुझे. उसने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा कैंची काटती है और धागा और सुई जोड़ते हैं. तो मैं जोड़ना चाहता हूँ, काटना नहीं चाहता. सो एनीवे, ये एक समझाने के लिए एक छोटी सी बात थी. गॉड ब्लेस यू गाइस एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच इंडीड. हमने बहुत इंपॉर्टेंट चंक्स की बात की आज, समझा. देयर के इस्तेमाल से बहुत सारे देयर कैन बी, नो डाउट अबाउट इट. देयर हैज बिन, देयर कैन बी हो सकता है. देयर हैज बिन हो चुका है. देयर हैज बिन अ चेंज ऑफ प्लान्स की तब्दीली हो चुकी है. देयर शुड बी, होना चाहिए. There should be enough food for everyone. हर एक लिए काफ़ी खाना होना चाहिए. There may be some rain later. हो सकती है. There may be some rain later. बाद में कुछ बारिश. और there must be a solution of this problem. इस मसले का हल होना चाहिए. There must be, ज़रूर होना चाहिए. There would be, हो चुका होगा. There would be a party at the weekend. नहीं होगी. There would be a party होगी जी मीटिंग के बाद. Thank you very much everybody. God bless you all for giving all these sentences. And now the last part is there versus there versus there. अब पहला there, ये सारे homophones हैं. और homophones का मतलब होता है sound alike. आवाज़ एक जैसी देती हैं, साउंड एक जैसी होती है, बट स्पेल डिफरेंटली. लेकिन उनकी स्पेलिंग मुख्तलिफ होते हैं. मिस और उनकी जो है वो मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं. जैसे देयर, पहला मोस्ट कंफ्यूज वर्ड्स हैं ये जी. देयर, पहले वाला देयर TH ही आर ई देयर, ये डमी सब्जेक्ट तौर पर या लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है. दूसरा TH EIR देयर, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. आप जानते हैं प्रोनाउंस को, उसका सब्जेक्टिव केस होता है, फिर ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट के बाद पोजेसिव है, और फिर ऑब्जेक्टिव है. ये पोजेसिव केस है. प्रोनाउंस में आप दे भी एक प्रोनाउन है, लेकिन ये दे इसका ये सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ दे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन विद ऑक्सिलरी आर जो है, ये तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं. और आप देखिए पहला जो THER देयर जो है उसका इस्तेमाल, देयर्स अ कॉइन इन द पॉकेट, जेब में एक सिक्का है.
और ये हुआ उसके लिए एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस के लिए, और गो ओवर देयर, वहां जाओ, ये लोकेशन के इस्तेमाल देर का किया आपने। अब जहां THE आया देयर, पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल इट्स देयर हेडेक, ये उनका दर्द सर है। इट्स देयर न्यू हाउस, ये उनका नया घर है। और उसके बाद फिर लास्ट है सब्जेक्टिव प्रोनाउन विद ऑक्सिलरी के साथ दे और RE का, ARE की शॉर्ट फॉर्म, दे आर की शॉर्ट फॉर्म है देयर। और ये इसका सेंटेंस, आई थिंक दे आर सेटिस्फाइड, मेरा ख्याल है वो दुरुस्त हैं। आई थिंक दे आर ओके, आई थिंक दे आर हैप्पी, आई थिंक दे आर नॉस्टैल्जिक होता है जब सैड होती है अबाउट द होम सिकनेस को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। और सो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकती हैं। Thank you. I hope you would have understood everything regarding this following lecture of there. ये था about practice and exercise, and everybody has participated in it. God bless you all. Thank you very much. Did you enjoy today's lecture? Yes. It was beneficial or not? Yes. Yeah, it was very informative and beneficial simultaneously. Thank you. God bless you all, and see you tomorrow. Bye-bye.